We are in Pahalgam right now, and it's been almost a month since the dastardly terror attack at Baisaran. We know post that the investigation was completely taken over by the NIA, and every day sources say the NIA is trying to touch new aspects as the leads come in, as evidence comes in. So various aspects of this case are being investigated. Now we also know that the service providers, the ghodewalas, the guides, etc., since that day, they are under the scanner for various reasons. They are being questioned, investigated, and their lives have been disrupted in the worst way possible, because every day some agency or the other calls them for questioning, and there is a schedule in their lives right now where every day they have to go to the police station and they have to ensure that they show their presence there. Now, in that, one aspect or one thing that was debated and still being debated is the story of the zipline operator. Muzammil Kumar, we are at his home, a humble abode here in Pahalgam, and as you can see, there is no one, at least no male member of the family here right now. There are only females, his sisters, mother, and obviously they don't want to come on camera. They don't want to come on camera, don't want to discuss this. They don't want to give any details on camera. Off record, we try to speak to them. They say that for 10-15 days, he was in custody, he was not released, and then finally when he was released, so every day his schedule is that he has to go report at the police station, report at the NIA, temporary office that has been created here, and this has become a routine and schedule for the family. Now, the debate was that whether his chant of Allahu Akbar, was it in any way something that was not normal? And the version of the tourists was that he did not say that for other tourists, and suddenly when the firing started, he chanted Allahu Akbar 3 times before he put a tourist on the zip line. So can that be evidence? And post that, should that be the reason that he's still being summoned, he's still under scanner? We do not know what the NIA investigation has brought out on him, or other people like ghodewalas who are being summoned every day, obviously questioned as part of the investigation. But this whole thing has absolutely disrupted the lives of so many people here in Pahalgam. This attack has in fact derailed their normal lives, where they used to be associated in one way or the other in the tourism sector, earning their livelihood daily. But right now it's more about hoping that the perpetrators of the Pahalgam attack, they are taken care of, they are killed, they are tracked down by the security agencies, so that probably will ensure that their lives will become slightly easier. Because till the time they are at large, till the time this case is unsolved, they are being summoned and their lives, as I said, are completely derailed. So this is the other side of the story here in Pahalgam. While we talk of tourism returning, we talk of basically how the tourism season has been derailed. But right now, more than that, people here want some semblance of normalcy returning in their lives, and then possibly they can think of their livelihoods and business. And behind me, I'll tell Tariq to show you from his residence. You can clearly see the Baisaran side. Obviously, this is the mountain range, and on the other side is the beautiful meadow of Baisaran, which saw one of the biggest terror attacks the country has ever seen. But as I said, hope in Pahalgam is that the perpetrators are brought to justice at the earliest, so that this daily struggle, this daily issue of being summoned, of the operators, the ghodewalas being summoned for questioning, this really ends in some semblance of normalcy, some ease comes back in their lives. ये काफी डिबेट हुआ था मसला, क्योंकि मैंने अल्लाह अकबर बोला था तो फिर वो शक के दायरे में आया. पहले तो इन्फॉर्मेशन थी कि एनआईए ने सूत्रों ने कहा था कि ऐसे के खिलाफ कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर 10-15 दिन तकरीबन बंद. हाँ जी, अच्छा, इसको इसकी शक पे लिया गया था, इसने अल्लाह अकबर क्यों कहा? और क्योंकि हमारा मजहब ये है, हम मोमडन हैं, जैसे हिंदू लोग भी अपने मजहब में जय श्री राम कुछ भी बोलते हैं, तो वैसे ही हम अल्लाह अकबर भी कहते हैं, तो खुदा का नाम लेते हैं, कुछ भी तूफान या कुछ भी हो तो हम उसी का नाम लेते हैं.
तो फिर उसको उसी के शक पे लिया गया था और ये बोला गया था अगर आपने आवाज सुनी तो आपने उस बंदे को क्यों छोड़ा था। उसने बोला मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये फायरिंग हो रही है, कुछ पटाखे जैसे भी लगा मुझे तो इसलिए छोड़ा है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर पुलिस ने लिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पे पूछा गया तो वहाँ पे एनआई ने भी उससे यही इन्वेस्टिगेशन की। तो फिर छोड़ दिया, बट अब डेली मतलब ऐसा कि इनको हाजिरी देनी पड़ती हाजिरी तो देनी पड़ती है, रोज जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन, सुबह 9-10 बजे रोज जाना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर कितनी देर शाम तक दोपहर में 2-3 बजे तक छोड़ देते? तो इन्हीं का है कि बाकी भी कुछ ऐसे है? नहीं, बहुत सारे यहाँ पे जो वहाँ पे एसोसिएशन वहाँ पे काम करते हैं, फोटोग्राफर्स है, जो शॉल वाले या चाय वाले होटल वाले उन ढाबे वाले को भी जो सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे। हाँ, और जो उस टाइम वहाँ पे गया था, जो काम के लिए गया था फोटोग्राफर के साथ, गेस्ट लोग के साथ, तो उनको भी जाना पड़ता है। वहाँ जाना पड़ता है। तो आपको लगता है कि दुआ क्या है पहलगाम की कि जल्दी से जल्दी इन्होंने किया है पकड़े जाए ताकि इन बेचारों की भी जिंदगी थोड़ी। यही तो हम भी चाहते हैं ना, जिसने ये किया है, क्योंकि इसमें जो बेगुनाह है उनको पकड़े जाते हैं, जो जिसने ये किया है उन दरिंदों को पकड़े और सबके सामने उनको लाए तो कश्मीर की जो इंसानियत है वो भी सामने फिर से आ जाएगी। तो कितनी जिंदगी जो है पहलगाम में डिस्टर्ब हुई है इस वजह से? और अगर आप पहलगाम की बात करें क्योंकि उसके बाद सब कुछ यहाँ डिस्टर्ब लग रहा है कि लोग भी परेशान हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो भी परेशान है, जो वहाँ थे वो भी, जो ना थे उनको भी बुलाया जाए। खाली पहलगाम ही नहीं है सर, अब पहलगाम पे ज्यादा असर हुआ क्योंकि पहलगाम में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ऐसा कि कश्मीर पूरा बंद पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार है वो खाली टूरिस्ट पे डिपेंड है। रिजिक देने वाला अल्लाह है, मगर फिर भी जरिया रखा है, कामकाज तो इन्हीं के साथ चलता है, पूरा जो कुछ भी यहाँ पे है इसी पे चलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ठीक से चले, टूरिस्ट फिर से यहाँ मोस्ट वेलकम करते हैं, जिससे हम यहाँ पे इनकी मेहमान नवाजी करते थे वैसे ही करते रहेंगे। आपको लगता है कि जो ये अल्लाह अकबर उन्होंने इतनी बात बोला, वजह होनी चाहिए शक तो अब इनको लगता है सर, जैसे हम अल्लाह अकबर, तो आपको पता ही सर, मोमेंट्स कुछ भी हो, हालात कुछ भी खराब हो या ठीक हो, हम तो ऐसा पढ़ते रहते हैं क्योंकि हमारा यही कलमा है, हम पढ़ते रहते हैं। जैसे राम होता है, जैसे जय श्री राम कुछ भी कहते हैं अपने मजहब में, क्योंकि हम मजहब की बात नहीं करेंगे, अब हम अपनी मजहब की बात करेंगे, हम अल्लाह अकबर कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, वो वजह नहीं होनी शक की वजह नहीं है। तो वहाँ पे जैसे पटाखा हुआ था, वो छोटा बच्चा है, 17-18 साल का है, ज्यादा से ज्यादा 18 साल का है, तो उसने जब अचानक आवाज सुनी तो वहाँ पे जो वो जिपलाइन भी कर रहा था उस टाइम, जिपलाइन भी जब तक वो नीचे पहुंचता है तब उसको पता चलता है कुछ हुआ है कुछ, नहीं तो वो भी उस टाइम नहीं जाता था, अगर उसको भी पहले शक होता था यहाँ फायरिंग हुई है, तो उसने अल्लाह अकबर नॉर्मली कहा नहीं करेंगे। तो आपको लगता है अब जब अगर ये जो है जिन्होंने किया है वो पकड़े गए, मारे गए, तो शायद उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे हालात ठीक हो, या इन लोगों का भी जो ये रोज आना जाना इनको भी परेशानी है कम हो? हाँ, इससे तो सब चाहते हैं ना सर, हम भी यही चाहते हैं, जब जिसने किया है जब उनको पकड़े जाएंगे तो जो दुश्मन होगा उसका तो मुंह काला ही होगा, और उसको पकड़े जाएंगे तो उसको तो इससे भी बुरी मौत मारनी पड़ेगी। अवामों के हाथ में दीजिए, फिर देखिए उनके साथ क्या हाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर यही आता है कश्मीरियों ने किया है, है ना, सब पीस रहे हैं कि हम भी जो भी काम काज कर रहे हैं इसी पे है, ड्राइवर जो भी होटल्स सब। आप यहाँ जो है मुजम्मिल के हमसाए हैं, तो आपका भी तो काम बहुत ज्यादा इससे सफर आप हुए होंगे जो अटैक हुआ, तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से इसको पकड़ा गया है, आपको लगता है अल्लाह अकबर ही वजह है उसकी? बस अल्लाह अकबर की वजह है, बाकी कुछ नहीं। हम सब मतलब यहाँ जो पहलगाम का रहने वाला है ना, सब जानते हैं उसको, ये नहीं, अगर उसको नहीं जानते तो हम लोग खुद ही बोलेगा इसको पकड़ो, ये हम जानता ही नहीं, ये हमको मतलब एक 4 दिन के बाद हमने देखा या 10 दिन के बाद हमने ये देखा, मगर वो इसी गांव का रहने वाला सब लोग उसको जानते हैं बचपन से। वो बेचारा 200 के लिए या 300 के लिए मजदूरी के लिए गया उधर, वो कोई बड़ा वाला, कोई मतलब बड़ा आदमी का बेटा नहीं है, वो मजदूरी के लिए। क्या हम दिल से अंदर से भी, हम धीरे से भी बोलता है, कुछ मतलब हादसा होता है या फिसलता है या कुछ घबराहट होता है, हम अल्लाह अकबर दिल से करते हैं, मतलब धीरे से दिल से हम करते हैं। वो कोई वजह नहीं होनी चाहिए शक की, वो कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसने ज़बान से जोर से निकल गया, बस वो वजह बन गया। ये तो मतलब अल्लाह अकबर, इसके लिए तो नहीं इतना टेंशन होना चाहिए, मगर ये बनाया टेंशन। तो मतलब जितने भी लोग यहाँ जैसे घोड़े वाले थे, गाइड थे, फोटोग्राफर जो वहां थे या नहीं थे, तब से उनको जो है बुलाया जा रहा है? क्या मतलब? उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के रोज? चालू उसी दिन उसी टाइम से ही पूछताछ चालू हो गया उनको सबको,
घोड़े वाला है, फोटोग्राफर है, शाल वाला है, जो भी उधर बिजनेस के लिए जाते हैं उनको रोज जाना पड़ता है। तो अब आप क्या दुआ करते हैं केस सॉल्व हो जाए ताकि ये बेचारे भी जो है इनको भी राहत की सांस मिले, क्योंकि अभी तक तो जो मारे नहीं गए जिनका दुआ तो करता रहता है, जिसने किया तो वो फंसना चाहिए, वो भी दुआ हम करते हैं, जिसने किया वो भी हम दुआ करते हैं कि वो फंसना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। तो बाकी लोग बेगुनाह फंस गया, उनके वजह से जो उसने मतलब ये किया, प्रॉब्लम जिसने किया उस सब परेशान, और वो मुसलमान है ही नहीं। उसने नाम बोला, मतलब ये भी मैंने सुना, हम उधर नहीं था, हम ड्राइवर है, हम मतलब न्यूज पे हम देखते हैं, वो उसने बोला कि पेट निकालो उसको, यहाँ कलिमा, उसको बोला कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मगर जो ये जबान में लेने वाला है वो उसने कार्रवाई नहीं किया उधर, जिसने कलिमा का नाम जो लेते हैं ना, मगर वो गलत कार्रवाई नहीं करने वाला है वो, उसने इसलिए, मगर ये हमारा मतलब मिनिस्टर लोगों को ये समझ नहीं आता है, जो हमारे से बड़े बड़े जो ये पूरा दुनिया चलाते हैं, मतलब मिनिस्टर लोग, वो ये नहीं समझते हैं। उसने वो ड्रामा बनाया, साजिश किया कि बोला पेट उतारो, उसको कहाँ फुर्सत मिलेगा पेट उतारने के लिए, उसको कहाँ टाइम मिलेगा कलिमा पूछने के लिए। अगर वो कलिमा या पेट उतारने का उसने लास्ट में वही उसने एक फायर उसने हाथ से किया, समझ लेना मेरा बात, एक उसने हाथ से फायर किया, वो फायर मतलब अगर कोई जख्मी हो जाता है, किसी को मतलब बचने का चांस होता, जख्मी हो गया, मगर बड़ा से बड़ा फायर उसने जबान से ये किया मुस्लिम के लिए, बदनाम के लिए उसने बोला कि इनको पेंट उतारो, चेक करेगा। अभी तक मतलब ये बहुत सालों से हम लोगों ने बचपन से ही देखा मिल्टन से, मगर अभी तक किसी को, फौज को भी नहीं बोला, जो अगर हिंदू फौज था उसको भी नहीं बोला पेंट उतारो, मगर ये पेंट उतारने का ये फायर बना के रखा, यही फायर पूरा मुस्लिम को अभी बदनाम किया, पूरा मुस्लिम को परेशानी में फंसा दिया। इसी बात के लिए जो पेंट उतारा, कलिमा पढ़ना, मगर पेंट उतारने और कलिमा पढ़ने का ये मुसलमान का जो कलिमा जानता है वो नहीं बोल सकता है, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। मगर उसने लास्ट में ये बोला कि अगर इनका ये हालात सुधरेगा, उसने ये कलिमा और पेंट उतारने का ये लास्ट ड्रामा बना के रखा उसने। अगर उसने ये किसने किया वो मतलब गवर्नमेंट पकड़ सकते हैं उनको, हम लोग मतलब हम बेगुनाह है, मतलब हम लोग भी मतलब इसमें पिस गए इसमें, मतलब पिसना चाहिए उनको, ये सीधी सी बात है, जिसने किया वो पिसना चाहिए, मगर उसने पिसाया पूरा दुनिया फंसाया इस टेंशन में, मगर वो पिसेगा नहीं, न उनको पकड़ते हैं, ये पूछते हैं बाकी लोगों को जो मतलब जिसको पता ही नहीं है उसके बारे में, जो मतलब जो टूरिस्ट के साथ भी हम ये बात बोलेंगे, हम टूरिस्ट के साथ उठते बैठते हैं, हमारे घरों में आते हैं, हम खाना खिलाते हैं उनको, चाय पिलाते हैं, वो भी हमको बहुत मतलब जो हमारे से बड़ा है वो बोलता हमारे बेटे हैं आप लोग, मतलब वो भी हमको कदर करता, हम उनको कदर करता, मगर पिस गए इसमें हम लोग, वो किसी का ताकत ही नहीं है, उसको फंसाते नहीं है, उनको पकड़ते ही नहीं है। हम सब कश्मीरी ने, मुसलमानों ने बोला वो पकड़ो, उनको पकड़ के पूरा चौक में उसको आग जलाओ, उनको जिन्होंने किया। अच्छा, उसमें बाकी बेगुनाह जिनको पता भी नहीं है उन्हीं को पूछते हैं ये क्या, वो परेशान किया, तो क्या फायदा मिलेगा इससे। कैंपस तारिक लोन, मीर फरीद, पहलगाम, इंडिया टुडे।